لائنز آپ نے دیکھی، تفصیلی خبروں سے پہلے آج کی 3 بڑی خبریں۔ انٹرنیٹ کی سست رفتاری، اراکین اسمبلی بھی بول پڑے۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات، انسانی اسمگلنگ کون روکے گا؟ اپیل کی سماعت میں 7 سال تاخیر، یہ کون سا انصاف ہے؟ سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ صاحب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا پیر کو فیصلہ سنائیں گے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے فہد بشیر سے۔ فہد بتائیے گا کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں بالکل راولپنڈی کے ڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی طویل ترین سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا نے اپنے آج حتمی دلائل مکمل کر لیے، جبکہ پروسیکیوشن ٹیم نے گزشتہ روز اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے۔ فریقین کے حتمی دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال تک عرصے میں وہ مکمل ہوئے، جبکہ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے 35 گواہان پر جرابی کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اہم گواہان سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں گزشتہ سال 27 فروری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی، جبکہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی آج کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ دونوں ملزمان کی جانب سے بریسٹر سلمان 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، پیر کو سنایا جائے گا۔ اپڈیٹ کرے تھے فہد، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے انٹرنیٹ کی سست رفتاری پر۔ ملک میں کئی ہفتوں سے انٹرنیٹ سست ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو شدید مشکلات اور کاروباری سرگرمیاں محدود ہونے لگی ہیں۔ انٹرنیٹ کی رفتار پر پیپلز پارٹی کی حکومت پر تنقید۔ قادر پٹیل نے کہا کہ کون سی فائر وال ہے جو لگ کے نہیں دے رہی۔ وزیر مملکت شیزا فاطمہ نے کہا کہ سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شازیہ مری بولی ملک میں انٹرنیٹ ہے نہیں اور ڈیجیٹل بل لا رہے ہیں۔ اتنی بدحالی میں نے کسی وزارت کی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جو کارکردگی اس وقت ان کی ہے۔ میرا کوسچن یہ کہ یہ فل سپیڈ سے انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ خدا کے واسطے اس کا جواب۔ ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی ملتی ہے، نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں ذاتی طور پہ جہاں پہ یوزر ایکسپیرینس میں چیلنج آیا ہے۔ اتنا ستیہ ناس انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ آپ ایکس اٹھا لیں، آپ وائی اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی۔ یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو لگتے نہیں لگ رہی اب تک آپ کے پاس؟ سر نیشنل سیکیورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی، اس کے اوپر نہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں نہ کریں گے۔ اگر ہمارا مقصد فریڈم آف ایکسپریشن کو اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس بند نہ ہوتا، آج ٹک ٹاک بند ہوتا، آج فیس بک بند ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ ڈویژن ذمہ دار ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں۔ آپ کہیں کہ ہم خود ذمہ دار ہیں، میں نہیں چاہتا کہ لیڈر آف ہاؤس تک بات جائے۔ اگر سیکیورٹی کنسرنز ریز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ پی ٹی اے کو ایز ریگولیٹر جاتے ہیں، ان کی وہاں پہ جہاں پہ وہ سیکیورٹی کنسرنز ریز کرتے ہیں وہاں پہ ہماری اتنی ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یوزرز کو ہم منیمل لیول کے اوپر تکلیف۔ آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کریں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں، اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا، انٹرنیٹ صحیح ہے۔ ہم ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں۔ کیا ڈیجیٹل نگرانی والا ملک بنایا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے سوال اٹھا دیا۔ کہا ایسی نگرانی نہ کی جائے جس سے فرد کا تمام ڈیٹا حکومت کے پاس چلا جائے۔ ایک سیریز آف لیجسلیشن ہو رہی ہے، ایک ضرور کنسرن ہے کہ کیا ہم پاکستان کو ایک سرویلنس اسٹیٹ تو نہیں بنانے جا رہے۔ اس میں آپ نے ایک فورینزک
एजेंसी बनाई हुई है, उसमें भी सर्वेलेंस के एस्पेक्ट्स हैं। 4-5 अथॉरिटीज क्रिएट की जा रही हैं फॉर रियली गेटिंग इनटू डीपली इनटू डेटा। पहले तो हम अवाम के डिजिटल राइट्स इंश्योर करें, खुदारा हम ऐसी सर्वेलेंस स्टेट की तरफ ना जाएं जो एक एक शख्स का पूरा एक्सरे जो है वो रियासत के पास हो। आई वांट दिस हाउस टू थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर वज़रा की गुफ्तगू तो आपने देखी है, अब देखिए आवाम क्या कहती है। आवाम का ये कहना है कि दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हमारा सफ़र पीछे की तरफ है। इंटरनेट को तेज़ करने के बजाय उसे सुस्त करने से तरक्की की रफ्तार भी सुस्त होगी। ज़ाहिर सी बात है, हम तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। नोट्स वगैरह डाउनलोड करने में या किसी टीचर से कंसल्ट करने में बड़ा इशू आता है। जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बड़ा मसला होता है। यहाँ पे मोस्टली ऑफिस जो हैं वो बाहर के ऑफिस हैं, यूएस यूके के, ठीक है, वो यहाँ से मूव कर रहे हैं वापस, क्योंकि इंटरनेट ना होने की वजह से। ये जो इंटरनेट जो स्लो कर रखा है इसको सही तरीके से बहाल करें ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई सही हो, हमारा कारोबार सही हो। फायरवॉल लगा रहे हैं, ना फायरवॉल लग रहा है, ना इंटरनेट सही हो रही है। इंटरनेट के कामों के हमारा बड़ा नुकसान होता है हमारी एजुकेशन का। गवर्नमेंट कुछ आवाम के बारे में सोच ले तो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन क्लासेस लेने में मसला होते हैं, बाकी असाइनमेंट वगैरह बनाने में इन सब चीज़ों के लिए मसला हो रहे हैं। काम में प्रॉब्लम आ रही है अब, क्योंकि काम ही पूरा जो है वो पूरी दुनिया में नेट पर चल रहा है। इंटरनेट चलेगा तो कारोबार भी थोड़ा बहुत चलेगा। और अब बात करेंगे कश्ती हादसे की। यूनानी कश्ती हादसे में लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल हैं। यूनानी हुक्काम ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है। 40 लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें बाकी ना रहीं। गुजरांवाला में FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मजीद 2 पर्चे काट लिए। फालिया में लापता नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी है। यूनान में दर्द की दास्तान, लापता अफराद के बचने का ना रहा इम्कान। यूनानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। 40 लापता पाकिस्तानियों के मिलने की उम्मीद बाकी ना रही। यूनानी हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन यूरोपीय कवानीन के मुताबिक रोका गया। कवानीन के तहत 72 घंटे से जायद कार्रवाई की ममानियत है। गुजरांवाला में FIA ने मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। अब तक काटे गए पर्चों की तादाद 4 हो गई। मुकदमात जज के 14 साल आबिद के चचा और गुग्गड़वाली के शब्बीर के भाई ने दर्ज कराए। आबिद के चचा ने साकिब जज्जा, अब्दुल रऊफ, इमरान उर्फ मानी के खिलाफ पर्चा कटवाया। शब्बीर अख्तर के भाई ने इंसानी स्मगलर कमर जमान को नामजद किया। वजीराबाद के रिहायशी 2 भाइयों के अहले खाना गम से निढाल हैं। 6 दिन पहले जो लास्ट मैसेज उनका रिसीव हुआ वो यही था कि हम कश्ती में सवार होने लगे हैं और इंशाल्लाह आपको एक सरप्राइज़ देंगे इटली पहुंच के। लेकिन वो 6 दिन हो चुके हैं, ना फैमिली मेंबर से, ना गांव के किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं। मलिक फॉल के हाजी अहमद के लवाहिकीन भी फिक्र से 2-4 हैं। इंसाफ चाहिए इन्हां दा एजेंट नाल ਜਿਹੜੇ पैसे ले सो वापस कराए जान ते लिया इन्हां दी डेड बॉडी वापस की जाए। गुजरात के अब्दुल रहमान और एहसन का भी कुछ पता न चल सका। फालिया में लापता फहद खालिद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शामिल करेंगे अदालती खबर। कत्ल के मुजरिम ने उम्र कैद काट ली। अपील 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही। समाअत के लिए भी मुकर्रर न हो सकी। 3 रुकनी बेंच के रूबरू दौरान समाअत इंकशाफ पर जस्टिस अथर मिनुल्लाह का अफसोस। 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को जिम्मेदार करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। उम्र कैद के मुजरिम ने सजा काट ली। अपील समाअत के लिए अब मुकर्रर हुई। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इंकशाफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने अफसोस का इजहार कर दिया।
शेखोपुरा के उस्मान पर यासीन नामी शख्स के कत्ल का इल्जाम था। 2007 में अदालत ने उम्र कैद सुनाई। उस्मान ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के लिए लगी। प्रोसिक्यूटर ने बताया ये मुल्जिम तो सजा काट कर रिहा हो चुका है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुकालमा किया। अपील मुकर्रर न होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर जिम्मेदार है। सदर, गवर्नर और पार्लियामेंट के पास अदलिया से रिपोर्ट मंगवाने के इख्तियारात हैं। फौजदारी केस में तफ्तीश के लिए महज 350 रुपए मख्तस किए जाते हैं। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है। डिप्टी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने केपी हाउस पर हमले का मामला उठाया। जस्टिस जमाल मिंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आपने आईनी दरख्वास्त दायर की। अदालत में सियासत ना करें, ये आम लोगों के मुकदमात हैं। अदालत ने मुल्जिम की रिहाई के बायस मुकदमा निपटा दिया। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां नवाकोट के रिहायशी शहबाज के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मकतूल की बीवी मुलव्वस निकली। पुलिस ने खातून समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बीवी निदा ने अपनी बहन और 2 दोस्तों से मिलकर वारदात की। निदा नशे की आदी थी, जिससे उसका खावन शहबाज मना करता था। शहबाज को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। पेशावर टोल प्लाजा के करीब चमकनी पुल पर गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ भाग और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग अफराद का ताल्लुक 4 सद्दा से है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर खास की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की समाअत हुई। गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों को पेश किया गया। अबूरी जमानत पर रिहा पीर उमर जान सरहंदी समेत 8 अफराद भी हाजिर हुए। अदालत ने नामजद मुल्जिम DIG जावेद जसकानी और SSP असद अली चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। केस की अगली समाअत 8 जनवरी को होगी। ब्रेक के बाद देखिए। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की पींगे। करप्ट अनासर ने पाकिस्तानी चावल को भी बदनाम कर दिया। के इलाके तख्ते नुसरती के पहाड़ों में आज भी लोग गारों में रहते हैं। सब्ज़ अली की रिपोर्ट देखिए। यह है 21वीं सदी, जहां दुनिया तरक्की की दौड़ में गुम है और लोग आलीशान महल नुमा घरों में रहते हैं। वहीं करक के इलाके तख्त नसरती की एक कौम आज भी पहाड़ों के दामन में गार नुमा कमरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कमरे करक की तारीख और सकाफत का एक मुनफरिद हिस्सा भी है। शिन गार पहाड़ी सिलसिले में बसने वाली ये कौम, इनका तर्ज जिंदगी और मैशियत भी मुनफरिद है। इन पहाड़ी लोगों का जरिया माश कानकुनी, गलाबानी और पहाड़ों से लकड़ी काटने पर मुश्तमिल है। ये तो जी हमारा पुराना तरीका है अबोजदात का। अभी चूँकि ये सकाफत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, इख्तिताम पजीर है। यहाँ लोग अपनी मेहनत से कुल्हाड़ियों और हथौड़ों की मदद से चट्टानों को तराश हराश कर अपने घर बनाते हैं। इन कमरों को सिर्फ रिहाइश के लिए ही नहीं बल्कि मसाजिद, हुजरों और दुकानों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने जो कमरे देखे हैं ये काफ़ी पुराने कमरे हैं, हमारे आबा अजदाद के ज़माने के बने हुए कमरे हैं। करक के इन पहाड़ों में बसने वाली ये कौम अपनी सकाफत को जिंदा रखने की जदोजहद कर रही है। हुकूमत की जानिब से तरक्की की दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की बुनियादी जरूरियात पूरी न होने पर ये लोग सवाल उठाने पर मजबूर है। कैमरा टीम के साथ सब्ज़ अली, आज न्यूज़ करक। गारों में रिहाइश के साथ आज 9 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।